It is effect of shape on acceleration due to gravity. You know that जो हम assumption ले रहे हैं ना कि Earth is spherical. Actually Earth is not perfectly spherical. You might be knowing that. ठीक है. देखो मैं आपको ये बता दूं कि Earth is not perfectly spherical. Perfectly spherical. Okay. It is basically what? It is actually elliptical in shape. It is slightly elliptical. Okay. Earth is slightly elliptical. थोड़ा बहुत ही elliptical है shape में. ठीक है. Perfect sphere नहीं है. ठीक है. It's elliptical in shape. You remember the fact. It's elliptical. ओके अगर ये elliptical है तो इसकी शेप से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर असर पड़ता है. ठीक है. देखो क्या असर पड़ता है. इस तरह से मैं मान रहा हूँ ये elliptical है. Ellipse is like this way. Okay, let us say this is ellipse. Okay, this is the earth. ये elliptical है. अब अगर ये elliptical है ना तो इसकी जो ये मान लो इसका सेंटर है यहाँ पे. ठीक है. अगर ये सेंटर है तो रेडियस बिल्कुल अलग अलग होगी. ठीक है. यहाँ से जो रेडियस होगी दिस रेडियस इज क्वाइट डिफरेंट. ये अलग होगी ये रेडियस देन दिस रेडियस. ये जो मैं यहाँ से रेडियस ले रहा हूँ. ठीक है. दोनों रेडियस अलग अलग होंगी. ओके राइट. द बोथ रेडियस विल बी डिफरेंट. ओके अब ये जो रेडियस पहले आप लोग ले रहे हो ये वाली रेडियस जो मैं पहले ले रहा हूँ. Okay, this one, right? This radius is called as equatorial radius. Okay, equatorial radius. Okay, right. This radius is equatorial radius. और ये वाली radius जो मैं consider कर रहा हूँ ना, this radius, it's elliptical radius. Okay, it's polar radius. Okay, polar radius. Right, polar radius. Okay. If I say you people which radius is more, you will obviously say sir equatorial radius is more. Okay, equatorial radius is more than that of polar radius. Okay, let me write it by RE. This is equatorial radius, and let me write it by RP. This is polar radius. Okay, you will simply say sir equatorial radius is greater than polar radius. Equatorial radius is greater than polar radius. Okay, right. और अर्थ के केस में कितना होता है ये? Let me show you. It is equatorial radius is greater than polar radius, and in case of our earth this is by 21 kilometers. ठीक है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 21 किलोमीटर का. ओके सो equatorial radius minus polar radius. Okay, this is RP. Sorry, this is RP. ठीक है. It is equivalent to 21 kilometers. Okay, the difference is 21 kilometers. This fact makes the earth elliptical. ओके सो अगर आप इस पॉइंट पर ये जो यहाँ पे है दिस इज इक्वेटर. ओके दिस पॉइंट इट्स इक्वेटर है ना. इस पॉइंट को मैं इक्वेटर कहूंगा. ठीक है. इट इज इक्वेटर. इक्वेटर. ओके दिस इज इक्वेटर. इस पॉइंट पर जो कि यहाँ पर आपने लिया है इक्वेटर है. ठीक है. दिस इज इक्वेटर एंड दिस पॉइंट जो यहाँ पर आप ले रहे हो इट इज पोल. ओके दिस पॉइंट इज पोल. ठीक है ना. This is pole. So poles और equator पर radius बराबर नहीं होगी. Both the radiuses will be different. Okay. So equatorial radius is different. Polar radius is different. So acceleration due to gravity दोनों जगह पर same नहीं होगा. It will be obviously different. Okay. If I write acceleration due to gravity at equatorial point GE, that will be equivalent to gm by r square. Okay. gm by r square. But r यहाँ पे क्या है? r यहाँ पे equatorial. तो I will write it r e square. gm by r e square. Okay, and what will be the polar radius? Gp. Okay, that is obviously gm by rp square. Okay, that is gm by rp square. Right, this is the expression for equatorial polar value of the acceleration due to gravity. Okay, this is the value. Okay. अब मुझे बताओ दोनों वैल्यूज में से ज्यादा वैल्यू कौन सा है. देखो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर. ओके यू मे सी दैट इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर. इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है ना इक्वेटोरियल रेडियस का तो अगर ये ज्यादा है. ठीक है. इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है. ठीक है. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जी का वैल्यू कम होगा. ठीक है कि नहीं. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे. सो यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर GE is less than GP. ओके पोलर रेडियस शॉर्ट है. पोलर रेडियस छोटी है. ठीक है. तो सेंटर ऑफ अर्थ से कम डिस्टेंस पर है इसलिए उस पर इक्वेटोरियल पोल उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा. ठीक है. सो याद रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is more at poles than at equator. Okay, equator पर इसका वैल्यू कम है. It's more at poles, it's more, but at equator it is less. Okay,
सो क्या आपका हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर ज्यादा होगा फिर, इक्वेटर पर कि पोल्स पर? यू मे सिंपली से सर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इस तरह से मैं लिखूंगा, मान लो इस तरह से, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, आप इस ऑब्जेक्ट को मेजर करो, इसका वेट मेजर करो, जरा मुझे बोलो इसका वेट क्या आएगा इक्वेटर पर, WE, इसका वेट इक्वेटर पर आएगा m टाइम्स GE आएगा ना, m टाइम्स GE इक्वेटर पर, ओके। और पोल्स पर इसका वेट क्या आएगा, वो आएगा WP, दैट इज m टाइम्स, ओके, GP, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, ओके। सो GE एंड GP आर डिफरेंट, सो देयरफॉर इसका वेट, एक ही ऑब्जेक्ट का वेट, देखो एक ही ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर कुछ और आएगा और पोल्स पर कुछ और आएगा, मींस इक्वेटर पर वो कम आएगा और पोल्स पर वो ज्यादा आएगा, ठीक है कि नहीं, इक्वेटर पर वो कम आएगा और पोल्स पर वो ज्यादा आएगा, ठीक है। सो आप इस तरह से लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट weighs more at poles than at equator, okay, than at equator, okay, is that clear, right? So means that अगर आप इक्वेटर पर जाओगे, इक्वेटर पर जाओगे और आप क्या करोगे, आप वहां पे कुछ चीज खरीदोगे, सोना खरीदोगे या कोई और चीज खरीदोगे, सपोज आपने ये सोना लिया, ठीक है, और उस बंदे ने आपको बोला इसका वेट वेट करके दे दिया आपको, ठीक है, सपोज इसका वेट कुछ आया, से फॉर एग्जांपल इसका वेट आया से मिसाल के तौर पर 30 न्यूटन, ओके, इसका वेट 30 न्यूटन आया, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ले जाओगे पोल्स पर, ठीक है, ये इक्वेटर पर आ गया, लेकिन जब आप इसको पोल्स पे ले जाओगे, व्हाट विल हैपन, पोल्स पर तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा ना, पोल्स पर इसका वैल्यू कम नहीं आएगा, पोल्स पर इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, हाउ मच लार्ज, तो जब आप देखोगे ना, सपोज के तौर पर लेट्स से पोल्स पर इसका वैल्यू 35 न्यूटन आ गया, ठीक है कि नहीं, 35 न्यूटन आ गया पोल्स पर इसका वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन, ओके, यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे ये सोना 5,000 रुपये में खरीदा था, फिर आप क्या कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, पोल्स पर जाकर आप इसी को बेचोगे, वहां पर आपको हो सकता है 6,000 मिल जाए, क्योंकि वहां पर तो इसका वेट ज्यादा है ना, तो हो सकता है आपको वहां पे 6,000 मिल जाए, ठीक है। सो अगर आप लोग अपना वजन चेक करवाओगे, ठीक है, इक्वेटर पर आप अपने आप को हल्का फील करोगे और पोल्स पर चले जाओगे तो आपका वजन एक्चुअल में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अगर इक्वेटर वाली मशीन आपको दिखा रही है से फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन, तो पोल्स वाली मशीन आपको ज्यादा दिखाएगी, इट विल शो यू समहाउ 550 560 न्यूटन, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेटर से चलते चलते पोल्स तक आप भारी हो गए हो, नहीं, ये असल में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो अक्सर मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, somehow tricky, let me show that. It says that like this way, there is a bear is traveling with initial velocity, initial velocity, okay, 10 meter per second, 10 meter per second, and final velocity, okay, let me say it is 5 meter per second, असल में ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, इज फॉलिंग, okay, we can say it's falling, okay, it's falling, it's falling, okay, फॉलिंग, ठीक है, राइट दिस वे। तो इस तरह से क्वेश्चन वाले ने पूछा है आपसे कि देयर इज अ बियर, एक बड़ा सा वो भालू है, ठीक है, अब वो गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, ठीक है, बेचारा पता नहीं किस हाइट पर चढ़ा है और उसके बाद गिर रहा है बेचारा, ठीक है, ये अर्थ है और उसके बाद ये बियर है यहाँ पे, तो लेट मी शो, आप बियर तो नहीं बनाना आएगा ना, ठीक है, तो ये गिर रहा है बेचारा नीचे, ठीक है, इसकी एक वेलोसिटी है 10 और यहाँ पर जब ये आ गया तो इसकी एक्स वेलोसिटी बन गई 5, ठीक है, ये गिर रहा है बेचारा, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट विल से कि आपको बताना है, क्वेश्चन वाले ने एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, से व्हाट इज द कलर ऑफ बियर, ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ बियर, the question seems totally irrelevant, okay, the question seems irrelevant, मतलब मीन्स अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटीज दे के है, एक्सेलरेशन वगैरह निकालनी पड़ती तो ठीक था यार, ये कुछ अजीब ही है, ये कलर ऑफ बियर बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। चलो देख लेते हैं, एनीवेज हमारा क्या है, देख लेते हैं मसला क्या है। u is initial velocity, okay, so this is initial velocity is here, it is 10, okay, okay, let me replace the value, sorry, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर, okay, let us see, here I will replace the values, the question was like this,
Initial velocity was 5 and final velocity was 10. Sorry, I misinterpreted. It's 10. Okay. So initial velocity is 5 meter per second. Okay. Final velocity is 10 meter per second. क्वेश्चन वाले ने वहीं से बोला है ये गिर रहा है बट इन क्वेश्चन वाला वहीं से बोल रहा है मुझे इन 10 से इन 2 सेकंड्स, ठीक है, 2 सेकंड्स में बियर ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, पूरा का पूरा, राइट। तो टी क्या है यहाँ पे, टी यहाँ पे 2 सेकंड्स है, राइट। सो एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी, इफ यू कैलकुलेट इट विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, सो v इज व्हाट 10, then we have 5 over 2, so calculate it, it will be 2.5 मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो देखो ये ऊपर से नीचे तो गिरेगा लेकिन इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी 2.5, ठीक है, विच मीन्स दैट दिस वैल्यू इज लेस देन g 9.8। ओके, दिस वैल्यू इज लेस देन 9.8। तो अगर ये वैल्यू 9.8 से कम है, 9.8 से कम है ये वैल्यू, तो ये कहाँ पे होगा, या 9.8 से कम है तो ये बियर इक्वेटर पे रहता होगा, है ना, क्योंकि इक्वेटर पर 9.8 से कम होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस बियर इज फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर पर आप देख लो कि बियर का कलर क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बियर उसी कलर का होगा, ठीक है कि नहीं। अगर से फॉर एग्जांपल ये पोल उस पे आता हमें कि नहीं, ये पोल उस पे रहता है तो इसका कलर क्या होता, व्हाइट होता, क्योंकि पोलर बियर था ना फिर। ओके, एनीवे दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, समहाउ ट्रिक था, थोड़ा बहुत इसको यूज करते हैं टीजर के तौर पे लोग, ठीक है। ओके, लेट अस सी नाउ सम अदर फैक्टर। ओके,